Hello guys, hello. हॅलो. येतोय सर आवाज. होते स्क्रीन शेअर झाली का रे? हो सर. ओके फाईन, ठीक आहे. सो गाईज लेट स्टार्ट विथ द क्लास. ओके, सो बिफोर गोइंग ahead, so we'll just give one revision. Okay, small revision what we have seen in last lecture. Hello. So what we have seen in last lecture? Multi-dimensional. multi-dimensional array. So we have covered multi-dimensional array, right? So guys, you have any doubt in that? Hello, anyone, any doubt? No, sir. Okay fine, ठीक है. So simply what is multi-dimensional array? It's just an array, okay, within array, or you can say array inside array. That is what multi-dimensional array. So consider, okay, there is an array containing, okay, such brackets, two, okay, angular brackets, okay, will be there. So it is a multi-dimensional array. To process multi-dimensional array, what we have to use? We have to use the two loop inside loop. First loop will, okay, process your row data. Second loop will process your sub array. So first loop will process your outer array, you can also say that, or inner loop will process your sub array inside outer array. Clear guys? येस सर. Yes, sir. ठीक आहे. सो आज आपण काय करणार आहोत, सिम्पलचं आपल्याला काय करायचं आज, आपण युजरकडनं डेटा गेट करायचा मल्टी, ओके, डायमेन्शनल ॲरेसाठी, आणि तो डेटा प्रिंट करायचा. ऑलरेडी वी नो हाऊ टू प्रिंट इट. हे प्रिंट करण्याचं आपण लास्ट टाइम बघितलेलं आहे. पण लास्ट टाइम आपण काय केलेलं, स्टॅटिक ॲरे क्रिएट केलेला. सो नाव वी विल, ओके, गो अहेड अँड वी विल ट्राय टू गेट इट फ्रॉम द युजर. ओके, सो आपण आय थिंक सो, ओके, मल्टी ॲरे प्रोजेक्ट, सो प्रोजेक्ट आपण क्रिएट केलेला आहे. यामध्येच आपण काय करणार आहोत, हे पॅकेज आपण डेमो नावाचं पॅकेज केलं आहे, मल्टी ॲरे प्रोग्राम. ठीक आहे. सो याच पॅकेजमध्ये आपण काय करूया, सिंपल क्लास करूया, घेऊया. असं काहीतरी नाव देतो मी याला, गेट मल्टी ॲरे प्रोग्राम. ठीक आहे. सो इट विल क्रिएट युअर क्लास. सो ओके, गेट मल्टी ॲरे प्रोग्राम डॉट जावा इज द फाईल. देन वी विल क्रिएट वन मेन मेथड, बिकॉज मेन मेथडशिवाय आपला क्लास एक्झिक्यूट नाही होणार. सो क्रिएट मेन मेथड इनसाइड युअर क्लास. ठीक आहे गाईज. सो आपल्याला इकडे आणखीन एक मेथड क्रिएट करू, जो काय करेल, युजरकडनं डेटा गेट करेल. सो इट विल गेट द डेटा फ्रॉम द युजर. सो गेट ॲरे data नावाचं मेथड. सो इट्स अन मेथड टू गेट द और रीड द array data, and we will create one more method here, void show array data. ठीक है guys. So this is all simple two methods. Okay, one is for getting get operation, second is to show or, okay, display operation. So we have to create an array first here. So how to create an array, multi-dimensional array कैसे create करना है, type of, okay, array, data type, then name of your array, suppose arr is the name of your array, then bracket equal to, okay guys, you can use new keyword here. Otherwise if you want to create it into, okay, in your inside method you can create also inside method, arr equal to new keyword, we have to use new keyword, and then what, int मध्ये काय guys, okay, size. So we have to, okay, confirm that key, okay, how many rows and how many column will be there. So I will say 3 column and 3 rows. So it will create, okay, it will allocate memory for 3 into 3 array. That is what 3 into 3, 9 element will be there in your arr variable. Clear guys?
Yes, sir. Okay, if you want to get it as an user data, you can also get enter row size or enter column size. So that will be the dynamic input from the user for your array creation. ठीक आहे. सो हे पण करू शकता तुम्ही. अदरवाइज यू कॅन डायरेक्टली पुट इट इंटू 3x3 साइज. ओके, असं करायचं असेल असं करा. ओके, वी विल गो विथ दिस पहिलं फर्स्ट. वी विल गो विथ दिस अँड देन वी विल गो विथ समथिंग एल्स. देन वी नीड अ स्कॅनर. सो वी विल क्रिएट ए स्कॅनर. Scanner SC equal to, initially suppose we'll create it here, scan तुम्हाला याच्या आधी मी स्टॅटिक कीवर्ड बद्दल सांगितलं होतं, राईट? सांगितलं होतं का? स्कॅनर कधीही स्टॅटिक मध्ये क्रिएट करायचा, स्टॅटिक ब्लॉक मध्ये. हा या ना गाईज, यावेळी मी सांगितलेलं तुम्हाला. सो स्टॅटिक म्हणजे याच्यामुळं काय होईल, मी म्हटलं होतं की एकच स्कॅनर क्रिएट होईल. ओके, मल्टिपल स्कॅनर क्रिएट करायची आपल्याला गरज नसणार आहे. सो त्यामुळं वी हॅव टू गेट द स्कॅनर इनसाइड स्टॅटिक ब्लॉक. सो इट इज वॉट, इट इज अ स्टॅटिक ब्लॉक. बघा या ब्लॉक आहे हा एवढा. ठीक आहे, या ब्लॉकचं काय, कसला ब्लॉक आहे तर स्टॅटिक ब्लॉक आहे. सो इट इज कॉल्ड एज अ स्टॅटिक ब्लॉक. ठीक आहे, सिस्टम डॉट इन हे झालं तुमचं स्कॅनर क्रिएट गाईज. आता स्कॅनर ज्यावेळेस तुम्ही स्टॅटिक ब्लॉकमध्ये गेट करताय त्यावेळेस स्कॅनर मस्ट आहे की तुमचं कसं असलं पाहिजे, स्टॅटिक असलं पाहिजे. सो यूज स्टॅटिक कीवर्ड टू युअर स्कॅनर. क्लिअर गाईज? Yes, sir. ठीक आहे. सो स्टॅटिक स्कॅनर SC, देन स्टॅटिक ब्लॉक, इट विल allocate memory for your scanner data, scanner variable SC. So it will allocate memory and you can use this SC inside your any method. Okay, it also get accessible in main method. It also accessible in any method, any other method. So get array data I also access in show array data method. So scanner तर create झालेला आपला. Now what we have to do, we have to pass or we have to show the message. एंटर. आता नंबर ऑफ एलिमेंट, आता किती नंबर ऑफ एलिमेंट आहे जर तुम्हाला बघायचं झालं, तुम्हाला माहिती आहे 3x3 ॲरे घेत आहे तुम्ही. 3x3 जर ॲरे घेत असाल तर तुम्हाला माहिती आहे की 3x3 म्हणजे 9 एलिमेंट्स तुम्हाला काय करायचे आहेत गाईज, एंटर करायचे. सो यू हॅव टू एंटर द 9 एलिमेंट. सो बिफोर दॅट आपण काय करूया, सोबतच आपण साईजबद्दल पण काम करूया. इंट रो साईज कॉमा कॉलम साईज. हे व्हेरिएबल आहेत, त्यांचे डिफॉल्ट व्हॅल्यू 0 असतील. सो वी हॅव टू एंटर द रो साईज अँड कॉलम साईज हिअर. सपोज रो साईज मी इकडे देतोय 3 ला काढतोय कारण स्टॅटिक काढून टाकू आपण. सपोज कॉल साईज, आता तुम्हाला कॉलम साईज आणि रो साईज गेट करावं लागेल युजरकडनं. सो फर्स्ट वी हॅव टू डिमांड इट टू युजर. एंटर ॲरे अरे रो साईज. सो जे काही तुम्हाला एंटर करायचं ते एंटर करा. कसं स्टोर करणार आपण, रो नावाचा व्हेरिएबल क्रिएट केला. रो साईज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट. सो इट विल गेट द ॲरे साईज. रो साईज. देन त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, सेम वेनी इकडे कॉल करणार एंटर ॲरे कॉल साईज. सपोज कॉलमला कॉल करतोय मी. कॉल व्हेरिएबल आहे आपल्याकडे. कॉल साईज इक्वल टू अगेन SC डॉट नेक्स्ट इंट. कारण आपण सिंगल डायमेन्शनल ॲरेमध्ये, नॉर्मल ॲरेमध्ये आपण फक्त साईज गेट करायचो. आता इथे तुम्हाला काय करावं लागेल, रो साईज आणि कॉलम साईज गेट करावं लागेल. गाईज क्लिअर आहात तुम्ही? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाईन, ठीक आहे. सो रो साईज कॉलम साईज झाला. आपण रो साईज आणि कॉलम साईजच्या अकॉर्डिंग ॲरे क्रिएट केला. ARR नावाचा ॲरे. त्या ॲरेमध्ये तेवढी मेमरी अलोकेट केली जाईल. देन आपल्याला काय करायचं, इकडे मेसेज द्यायचा आहे की काय करा बाबा, इतके एलिमेंट एंटर करा. तर किती एलिमेंट, रो इंटू कॉलम. आपल्याला इकडे मॅनेज करावं लागेल. सो आपण काय करू, इकडे ब्रॅकेटमध्ये हा रो साईज मल्टिप्लाय बाय कॉल साईज. ठीक आहे. सो त्यामुळे आपल्याला काय मिळतील, 3x3 जर मी केलं 3 रो आणि 3 कॉलम केलं 3x3 9 एलिमेंट मिळेल. 2x2 केलं तर 4 एलिमेंट मिळेल. 2x4 केलं तर 8 एलिमेंट असं कन्सिडर करून देईल आपल्याला ते. सो आपण इकडे परत सुरू करणार. एंटर 9 ॲरे एलिमेंट्स हा मेसेज येईल आपल्याला आणि आपल्याला तेवढे नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर करायचे. तुम्हाला माहिती आहे की ॲरेचे एलिमेंट एंटर करायचे आहेत. एक एलिमेंट नाही आहे, नंबर ऑफ एलिमेंट आहेत. सो तुम्हाला हे काय करावं लागेल, लूपमध्ये ऑपरेशन करावं लागेल. आणि इफ यू वॉन्ट टू स्टोअर इट इन टू पर्टिक्युलर ॲरे, पर्टिक्युलर एलिमेंट और
particular array, and inside that particular array we have to place it into particular index number. So we have to use the loops here. So loop within loop आपल्याला इकडे यूज करायचं आहे. सो यामध्ये पहिलं लूप असेल इंट, जे की आय लूप असेल स्टार्ट विथ 0. ओके, या लूपमध्ये आपण कॉलम यूज करणार आहोत. आय इज लेस दॅन, वॉट लेस दॅन. गाईज आता तुम्हाला इकडे काय करावं लागेल, पहिलं लूप तुम्हाला माहिती की रोसाठी चालत आहे, दुसरं लूप कशासाठी चालते, कॉलम साईजसाठी चालते. तुमच्याकडे रो साईज कॉलम साईज नावाचे व्हेरिएबल आहेत, तुम्ही ते पण यूज करू शकता. अदरवाईज यू कॅन यूज ARR डॉट लेंथ डायरेक्टली. सो इट विल गिव्ह यू ओके नंबर ऑफ ॲरे इनसाइड ARR. ओके, किती सब ॲरे आहेत ARR मध्ये ते तुम्हाला ओके रिटर्न करून देईल. सो नंबर ऑफ सपोज 3 ॲरे आहेत. आपण काय म्हटलोय की साईज सपोज रो साईज 3 दिली की किती ॲरे आहेत त्यात ARR मध्ये 3 सब ॲरे आहेत, आणि त्या प्रत्येक सब ॲरेमध्ये किती एलिमेंट आहेत कोण सांगणार की हे कॉल साईज सांगणार. सो कॉल साईजचा पण तुम्ही यूज करू शकता इकडे. ठीक आहे, आय प्लस प्लस इकडे हे झालं. आता याच्यानंतर हे झालं रोसाठी. आता हे लूप आपण कशासाठी यूज करणार आहात, इंट सपोज जे इक्वल टू इनिशियली 0 हे चालेल आपलं ओके कॉलमसाठी. सो जे इज लेस दॅन, आता इथे कुणाची साईज घ्यायची, एक तर तुम्ही ओके कॉल साईज गेट करू शकता इकडे असं लेस दॅन कॉल साईज सपोज असं. अदरवाईज तुम्हाला कॉल साईज नको आहे, तुम्हाला ॲरेचंच ओके पर्टिक्युलर लेंथ पाहिजे, तर काय करणार इकडे ARR ऑफ आय डॉट लेंथ करावं लागेल गाईज तुम्हाला. क्लिअर आहे, म्हणजे ओके फर्स्ट सब ॲरे इनसाइड ARR. ओके, त्याच्यात जेवढे काही त्याची एलिमेंट आहेत तेवढे एलिमेंटची साईज इकडे ओके लेंथ इकडे तुम्हाला मिळून जाईल. क्लिअर आहात गाईज, हे काय आहे. ओके, सो नाव जे प्लस प्लस हे झालं तुमचं इनर लूप, हे झालं तुमचं आउटर लूप. नाव इकडे काय करायचं, तुम्हाला डेटा स्कॅन करायचा आणि त्या पर्टिक्युलर ॲरेमध्ये स्टोअर करायचा. ॲरे इज वॉट ARR, देन आय म्हणजे सब ॲरे आपण सांगितला की ARR मधला हा सब ॲरे, त्यानंतर ह्या सब ॲरेमधला हा पर्टिक्युलर इंडेक्स नंबर. सो दॅट इज वॉट ARR ऑफ आय ऑफ जे. क्लिअर गाईज. Yes, sir. ठीक आहे, देन जस्ट स्कॅन द डेटा बाय युजिंग SC. ओके, स्कॅनर. नेक्स्ट आपला इंटिजर डेटा आहे, सो नेक्स्ट इंट यूज करणार, तो डेटा स्कॅन करेल आणि त्या पर्टिक्युलर सब ॲरेमधल्या ओके पर्टिक्युलर इंडेक्समध्ये तो डेटा काय केला जाईल, स्टोअर केला जाईल. सो अशा वेळी तुम्ही काय करता आहात, पूर्ण ॲरेचा डेटा युजरकडनं गेट करतात, जो कसा आहे मल्टी डायमेन्शनल ॲरे आहे तुमचा. क्लिअर गाईज तुम्ही इकडे. ठीक आहे, नाव प्रिंट करायचं तुम्हाला. असं कसं प्रिंट करणार, तो तुम्हाला माहितीच आहे. प्रिंट करायचं असेल तरी तुम्हाला 2 लूप लागणार आहेत. सपोज इकडे आपण काहीतरी मेसेज दिला, मल्टी ॲरे डेटा काहीतरी असा मेसेज दिल्यानंतर तुम्ही ऑब्विसली प्रिंट करायचं तर फॉर लूप लावावं लागेल तुम्हाला. आता हे फॉर लूप तुम्ही कॉपी जरी केलात तरी ओके नो इश्यू. सो आय विल कॉपी इट टू सेव्ह ओके अ टाईम. आय विल कॉपी इट अँड पेस्ट इट हिअर. आय जे लूप सेम. इकडे स्कॅन करण्याच्या जागी आपल्याला काय करायचं, इकडे वी जस्ट नीड टू प्रिंट युअर डेटा. सो प्रिंट कसा करायचा आहे, LN करायचा का तर नाही, आपल्याला काय करायचं आहे मॅट्रिक्स फॉर्मॅटमध्ये डेटा प्रिंट झाला पाहिजे. ओके, देन हाऊ टू प्रिंट इट इंटू मॅट्रिक्स फॉर्मॅट हे जर बघायचं असेल तुम्हाला, तर तुम्हाला काय करायचं आहे, पहिला आपण काय करतो, पहिला रो मॅनेज करतो. सो पहिला रो झाला, दुसरा रो झाला, तिसरा रो झाला. आपण सांगितले की सपोज 3x3 ॲरे दिला आहे की आपल्या ॲरेमध्ये 3 सब ॲरे आहेत. सो वी विल प्रोसेस फर्स्ट सब ॲरे, देन वी विल प्रोसेस सेकंड सब ॲरे, देन वी विल प्रोसेस थर्ड सब ॲरे. क्लिअर गाईज. Yes, sir. ठीक आहे, बिफोर दिस वी विल जस्ट ट्राय टू प्रिंट ARR ऑफ आय ऑफ जे. सो आउटपुट कसं येतं ते ऑब्झर्व करा आणि इकडे स्पेस देतो थोडासा. ओके फाईन, हे झालं तुमचं ॲरे प्रिंट करून. नाव आपण काय करणार आहात, या मेथडला कॉल करायचं. इफ यू वॉन्ट टू कॉल दिस मेथड वी हॅव टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ गेट ॲरे वॉट एवर गेट मल्टी ॲरे प्रोग्राम. सो ये मल्टी ॲरे प्रोग्राम इक्वल टू न्यू मल्टी ॲरे प्रोग्राम. हा झाला तुमचा काय ऑब्जेक्ट क्रिएट. सो मल्टी ॲरे प्रोग्राम डॉट पहिलं गेट ॲरे डेटा, देन ओके MAP डॉट शो ॲरे डेटा. यावेळी आपण काय करणार आहात, मेथड कॉल करणार आहात. क्लिअर गाईज तुम्ही इकडे. Yes, sir. ठीक आहे, सो आय विल एक्झिक्यूट इट गाईज. ओके, चेक करा, ऑब्झर्व करा की ह्याच वेळी तो एक्झिक्यूट होतो का. ॲज अन जावा ॲप्लिकेशन एक्झिक्यूट करतोय आपण त्याला. सो हा एक्झिक्यूट झाला तुमचा प्रोग्राम. तुम्हाला आता तो काय करतोय, डिमांड करते. काय डिमांड करते की एंटर ॲरे ओके रो साईज. ॲरेची रो साईज एंटर करा. रो साईज देतोय मी 3 इज द रो साईज. अँड वॉट इज द कॉलम साईज, कॉलम साईज इज ऑल्सो 3. So 3 into 3 means what, 9 element will be there. We have to enter the 9 element now. Okay, so हा तुम्हाला मेसेज देईल एंटर 9 ॲरे एलिमेंट्स. तो हा आपल्याला मेसेज आलेला आहे. सो 9 एलिमेंट आपण एंटर करूया. ओके 1 1
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 अँड 1 9 हे झाले आपले 9 एलिमेंट गाईज. लक्षात घ्या, मी ह्याला थोडंसं एक्सपांड करतोय. सो 9 एलिमेंट आपण एंटर केलेत. एंटर केल्यानंतर चेक करा, इट्स वॉट युअर आउटपुट मल्टी ॲरे डेटा. ओके, जो कसा दिला तुम्हाला एकाच लाईनमध्ये आपण प्रिंट केलेला आहे गाईज. क्लिअर आहात? ठीक आहे, जो डेटा एंटर केला तो डेटा त्यांनी डायरेक्टली काय केला, प्रिंट करून दिलेला आहे तुम्हाला. सो आय होप यू गाईज आर क्लिअर. Yes, sir. गर्ल्स यस सर. ओके गाईज, ठीक आहे. सो फाईन, ठीक आहे. हे झालं. त्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो डेटा तुम्ही प्रिंट केला एका लाईनमध्ये जर प्रिंट करायचा असेल, ओके, एका खाली एक प्रिंट करायचा असेल, तर इकडे काय करणार तुम्ही, हे स्पेस काढणार आणि हे LN इथं टाकणार तुम्ही. सो LN म्हणजे काय, प्रत्येक एलिमेंट न्यू लाईनला तुमचा प्रिंट केला जाईल. सो अजून आपण रन करूया त्याला. एंटर रो साईज. ओके, सपोज 2 एलिमेंट देतोय, 2 रो अँड 3 कॉलम. 2 रो 3 कॉलम म्हणजे किती एलिमेंट असल्या पाहिजे, 6 एलिमेंट, राईट. सो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. सो गाईज चेक करा तुम्ही इकडे काय झालेलं आहे, तुमचे 6 एलिमेंट त्यांनी गेट केले आणि 6 एलिमेंट तुम्हाला त्यांनी प्रिंट करून दिलेले आहेत. क्लिअर? हॅलो. यस सर. यामध्ये जर तुम्ही बघाल तर हा काय झाला तुमचा सब ॲरे फर्स्ट झाला आणि हा काय झाला तुमचा सब ॲरे सेकंड झाला. क्लिअर गाईज? हो सर. का, कारण आपण काय सांगितलंय, रो साईज 2 म्हणजे किती सब ॲरे, ARR मध्ये 2 सब ॲरे. ओके, क्लिअर. आणि प्रत्येक सब ॲरेमध्ये किती एलिमेंट, देर आर 3 एलिमेंट इनसाइड सब ॲरे. क्लिअर गाईज? ओके फाईन, ठीक आहे. सो आता तुम्हाला हेच काय करायचं, तुम्हाला काय विचारतं की वी हॅव टू प्रिंट द ॲरे, मल्टी डायमेन्शनल ॲरे इंटू मॅट्रिक्स फॉर्मॅट. सो मॅट्रिक्स फॉर्मॅटमध्ये कसा प्रिंट करायचा सब ॲरे. If you want to print your array into matrix format, then what you have to use, we just have to do it like this. So हे एका लाईनमध्ये प्रिंट झाला पाहिजे प्रत्येक ॲरे, सब ॲरे. स्पेस दिला आपण आणि सब ॲरे प्रिंट करण्याचं काम कोण करतंय, जेचं लूप करतं. आणि जेचं लूप म्हणजे काय, एक पूर्ण सब ॲरे प्रिंट करेल. सो पहिलं काय होईल, ओके, 11 12 अँड 13 प्रिंट होईल एका लाईनमध्ये, कारण आपण इकडे LN केलं नाही आहे, म्हणजे एकाच लाईनमध्ये प्रिंट होईल. आणि त्यानंतर हे प्रिंट झालं की मी इकडे काय करणार गाईज, एक /n देणार. /n म्हणजे काय, एक लाईन नेक्स्ट म्हणजे काय, एक सब ॲरे प्रिंट झाला की काय करा, नवीन लाईनला जा आणि नंतर वर जाऊन तो काय करेल, दुसरा सब ॲरे प्रिंट करेल. म्हणजे न्यू लाईनला काय होईल, तुमचा सेकंड सब ॲरे येऊन जाईल. क्लिअर गाईज? हो सर. ओके, सो लेट्स ओके सी इट हाऊ इट विल वर्क. बघा, एक्झिक्यूट केलं. रो टाईप, ओके, रो साईज सांगायची 3, कॉलम साईज सांगायची आहे तुम्हाला 4. 3 × 4 म्हणजे किती एलिमेंट असणार आहेत, 12. सो किती सब ॲरे आहेत त्यात, 3 सब ॲरे. आणि प्रत्येक सब ॲरेमध्ये किती एलिमेंट, 4. क्लिअर गाईज? सो बघा, मी एंटर केलं, 12 एलिमेंट एंटर करायचे आहेत. ओके, सो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. आता हे झाले तुमचे 12 एलिमेंट. बघा, हा पहिला सब ॲरे आहे तुमचा, हा दुसरा सब ॲरे आहे तुमचा आणि हा काय झाला, तिसरा सब ॲरे आहे. क्लिअर आहेत गाईज तुम्ही? हो सर. ओके, हा झाला मॅट्रिक्स फॉर्मॅटमध्ये प्रिंट तुमचा. येस. ओके, सो यावेळी तुम्हाला काय करायचं, मॅट्रिक्स फॉर्मॅटमध्ये प्रिंट करायचं म्हणजे काय एक्स्ट्राची गोष्ट करत नाही आहे. फक्त इथे प्रिंट करताना तुमचे ॲरे एलिमेंट आपण काय करतो, एका लाईनमध्ये प्रिंट करतोय. ओके, आणि पूर्ण एक सब ॲरे प्रोसेस झाला की नेक्स्ट टाइम ज्यावेळेस आपण त्याला प्रिंट करायला जाऊ त्यावेळेस आपण काय करतोय की नवीन लाईनला प्रिंट करा दुसरा सब ॲरे. दॅट इज वॉट दिस पर्टिक्युलर प्रिंट एलियन स्टेटमेंट. क्लिअर गाईज तुम्ही? Yes, sir. Okay, so this is the way to get your array from user and process it. Okay, like this. So तुम्हाला जर array within array असेल किंवा सब array असेल, array inside array किंवा array च्या आतमध्ये array असेल, inner array पण म्हणू शकता तुम्ही, तर तुम्हाला 2 लूप यूज करावं लागतील गाईज. इकडे क्लिअर आहात तुम्ही? हो सर. ओके फाईन, ठीक आहे. ओके, चलो ठीक आहे. आता थोडंसं आपण ट्राय करू की याच्यावरती थोडंसं प्रॅक्टिस केलं जाईल.
ठीक आहे. यावरती जास्त तुम्हाला वर्क तर दिलं जाणार नाही, फक्त काही प्रोग्राम्स तुम्हाला जे आहेत ते तुम्हाला इकडे दिले जाऊ शकतात गाईज. ओके, आता यात काय लॉजिकल प्रोग्राम्स विचारतील ते आपण सांगू शकत नाही. ओके, सो ओके यू हॅव टू प्रॅक्टिस इट लाईक दॅट. क्लिअर गाईज. सपोज तुमच्याकडे असा ॲरे दिलेला आहे. आता कधी कधी तुम्हाला जसं तुमच्या एक्झाममध्ये वगैरे तुम्हाला प्रोग्राम्स आले असतील की कॉमन एक्झाममध्ये प्रोग्राम काय येतात, ॲडिशन करा. ओके, 2 मॅट्रिक्स ॲरे आहेत तुमच्याकडे ओके, मल्टी डायमेन्शनल ॲरे आहेत. सो 2 मल्टी डायमेन्शनल ॲरेचं तुम्हाला काय करायचं आहे, ॲडिशन करायचं आहे. ओके, किंवा 2 मल्टी डायमेन्शनल ॲरेचं सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे, किंवा ओके तुम्हाला असे असतात की मल्टिप्लिकेशन करा वगैरे अशा एक्झाम्पल. ओके, तर त्यावेळेस काय करणार मग तुम्ही, कसं करणार हे मल्टिप्लिकेशन किंवा ओके ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन, हाऊ टू डू दॅट. दोन ॲरेचे ॲडिशन करून आपण या थर्ड व्हेरिएबलमध्ये ते स्टोअर करून ते प्रिंट करू शकतो. ओके फाईन. 2 व्हेरिएबलमध्ये ओके ॲडिशन करायचं 2 ॲरेचं आणि थर्ड व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर करून प्रिंट करायचं. ओके गाईज, ओके फाईन, असं करता येईल. ओके, अजून कोणाला काय वाटतं की असं करता येईल आपल्याला. एनीवन. अजून काय करता येईल आपल्याला, चला सांगा पटकन. सर दोघा ॲरेची ॲडिशन करून एका थर्ड ॲरेमध्ये आपण स्टोअर करावी लागेल. ओके फाईन. रिझल्ट वी हॅव टू स्टोअर इन टू द थर्ड ॲरे. ओके, ॲरेचं ॲडिशन करताना आता माझ्याकडे 2 सब ॲरे आहेत, तर 2 सब ॲरे मला युजरकडनं एंटर करायचे आहेत. तर 2 सब ॲरेचे ॲडिशन, आता मॅट्रिक्स आहेत आपल्याकडे. हाऊ टू ॲड युअर मॅट्रिक्स डेटा. मॅट्रिक्स कसे ॲड होतात आपल्याकडे. सपोज मी इकडे तुम्हाला काय करतो, एक सिम्पलचं नोट्स क्रिएट करतो आहे. नोट्समध्ये तुम्हाला मी 2 ॲरे करून दाखवतो अँड जस्ट लेट मी नो हाऊ टू ॲड दॅट ॲरे. सिम्पलचे ॲरे घेतोय गाईज मी तुमच्यासाठी. हा फर्स्ट सब ॲरे असेल तुमचा, त्याच्यात आहे 1 2 3 1 ओके 4 2 1 5 6. हा झाला फर्स्ट सब ॲरे तुमचा मल्टी डायमेन्शनल ॲरे. हा झाला 2 3 1 ओके. हा दुसरा आहे तुमचा 2 3 1, काही असू शकतं ते डेटामध्ये 1 1 1. हा तुमचे 2 मॅट्रिक्स आहेत तुमच्याकडे. ओके, दिस इज ऑल्सो मॅट्रिक्स. 2 सब मॅट्रिक्स तुमच्याकडे काय 2 मॅट्रिक्स ॲरे आहे तुमच्याकडे. सो आता आपल्याला याचं ॲडिशन करायचं. सो व्हॉट विल बी द रिझल्ट. काय आला पाहिजे रिझल्ट. कसं होईल ॲडिशन, मॅट्रिक्सचं ॲडिशन कसं असतं. कॉलम बाय रो. ओके फाईन. मला सांगा मग आन्सर कसं करता येईल आपल्याला. काय आन्सर यायला हवं आहे. गाईज ठीक आहे, मी तुमच्यासाठी इकडे सर्च करतोय हाऊ टू मॅट्रिक्स. यामध्ये बघा त्यांनी काय केलेले आहेत, 2 सब मॅट्रिक्स दिलेले आहेत. हा एक सब मॅट्रिक्स आहे, हा एक सब मॅट्रिक्स आहे. या दोन्हीचं ॲडिशन करायचं त्यांना. तर काय केलं त्यांनी 2 × 2 सब मॅट्रिक्स आहे. 2 × 2 याच्यात 2 एलिमेंट, 2 ॲरे 2 ॲरे 2 ॲरे 2 ॲरे आहेत. ओके, ॲरे 1 ॲरे 2 ॲरे 1 ॲरे 2. दोन्ही ॲरेमध्ये काय आहेत, 2-2च एलिमेंट आहेत. सो कसं केलं त्यांनी ॲडिशन बघा. या दोन्हीचं ॲडिशन केलं तर ओके रिझल्ट विल बी लाईक धिस. असा आला पाहिजे रिझल्ट. तो पहिल्याचं काय आलं 3 4 0 2. 3 4 0 2 कसं आलं असणार गाईज बघा. 1 आणि हे 2 काय होईल 3 आलं इकडे. 5 प्लस -1 किती येतं 4. ओके -4 प्लस 4 किती येतं 0. ओके 0. 3 प्लस -1 व्हॉट विल बी द आन्सर 2. तर कसं ॲडिशन होते माहिती आहे तुम्हाला, आता कळलं हाऊ इट विल ॲड युअर डेटा. क्लिअर आहात का. हो सर. Yes, sir.
इकडं पण त्याचं ते सांगितलं आहे 1 + 2 4 - 4 + 4 ओके सेमच आहे, काही इशू नाही आहे इकडे. सो क्लिअर आहात गाईज. सो तुम्हाला हेच करायचं इकडे. आता कसं करणार तुम्ही, मग काय यायला पाहिजे तुमचं ॲडिशन, हां सांगा काय मॅट्रिक्स बनेल आपला 3 3 5 हां 5 4 4 ओके 3 3 7 7 3 3 2 6 7. 2 6 7 क्लिअर गाईज. सो इट विल बी द आउटपुट. क्लिअर आहात का तुम्ही. यस सर. ओके फाईन. आता हे कसं करायचं आपण सांगा. आता आपल्याकडे तर ओके प्रोग्राम लिहिलेला आहे की आपण काय करतोय, ॲरेचा डेटा युजरकडनं गेट करते. पण किती ॲरे गेट करतोय मी, एकच ॲरे गेट करतोय युजरकडनं, बरोबर. क्लिअर आहात तुम्ही. येस सर. आता तुम्हाला एवढं तर कळलं की डेटा ॲरेचा डेटा मल्टी डायमेन्शनल ॲरेचा डेटा युजरकडनं गेट करायचा असेल तर काय करावं लागेल. क्लिअर आहात तुम्ही याच्यासाठी. हो सर. ओके ठीक आहे. सो आता यासाठी आपण हे जर केलं तर मी काय करतोय गाईज, आपल्याकडे एक ॲरे ऑलरेडी आपल्याकडे आहेच, आपण युजरकडनं गेट करतोय, त्याचं नाव काय आहे ARR नावाचं आहे. ओके तर आता मी काय करतोय, एक ॲरे मी स्टॅटिक घेतो इकडे. ठीक आहे, एक ॲरे युजरकडनं गेट करायचा आपल्याला, एक ॲरे स्टॅटिक गेट करायचा. सो तुम्ही काय करू शकता, दोन्ही ॲरे युजरकडनं गेट करू शकता. क्लिअर गाईज. यस सर. सो आय विल क्रिएट वन मेथड हिअर, पब्लिक वॉइड ओके ॲडिशन नावाचं मेथड क्रिएट करतोय. तुम्हाला माहिती आहे की ॲडिशन कशाचं आहे, मल्टी डायमेन्शनल ॲरेचं आहे. सो यासाठी आपल्याला एक ते ॲरे क्रिएट करावं लागेल एक. ओके सो विल क्रिएट ॲरे. आता ॲरे कसला आहे तर इंटिजर टाईप ॲरे घेऊया. ARR नावाचा ऑलरेडी आपल्याकडे ॲरे आहे. सो मी काय करतोय गाईज, इकडे सपोज एखादा ॲरे घेतोय ARR2 नावाचा ॲरे घेतोय. सो ह्याला काय करतोय मी, ARR1 करतो सपोज याला. सो ARR1. आता तुम्हाला जिकडे ARR आहे तिकडे ARR1 करावं लागेल गाईज. इकडे ARR1. सो इथे पण ARR1 करावं लागेल, इकडे पण ARR1, इकडे पण ARR1. सो क्लिअर गाईज तुम्ही. यानंतर प्रिंट करताना सुद्धा क्लोज झालं. ओके सो वाईल प्रिंटिंग टू युअर ॲरे सो वी हॅव टू मेक शुअर ARR1 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 तुम्ही करणार. सो गेटिंग गाईज. Yes sir. ओके सॉरी ठीक आहे. सो यावेळी आता हा जो ARR2 क्रिएट करताय तुम्ही, सो ARR2 म्हणजे काय, हा पण 2 डायमेन्शनल ॲरे. तुम्हाला माहिती आहे याचे पण तुम्हाला काय करायचे आहेत, ओके रो आणि कॉलम तुम्हाला सेम वेनी गेट ओके ठेवायचे. आता सेम असणं गरजेचं आहे. जर सेम नसतील तर काय करावं लागेल मग तुम्हाला, ते नंतर बघू. आपण पहिलं काय करूया, सेम करू. आपण आता इकडे जे युजरनं डेटा देणार आहोत तोच डेटा आपण सपोज आपल्या काय करणार आहोत, आपल्या या ॲरेला पण आपण यूज करूया. सपोज 3x3चा आपण मॅट्रिक्स बघूया, कारण आपण 3x3चा आउटपुट काढलेलं आहे. 3x3 असा मॅट्रिक्स घेतो. आणि तुम्हाला माहिती आहे की ज्यावेळेस तुम्हाला स्टॅटिक ॲरे क्रिएट करायचा असतो त्यावेळेस तुम्हाला डेटा द्यायची गरज नसते, इकडे म्हणजे साईज द्यायची गरज नसते. सो यू कॅन यूज इट डायरेक्टली लाईक दिस. क्लिअर गाईज. यस सर. फर्स्ट सब ॲरे, सेकंड सब ॲरे, हा थर्ड सब ॲरे. 3x3 म्हणजे 3 सब ॲरे आणि प्रत्येक सब ॲरेमध्ये 3 एलिमेंट. सो काय काय एलिमेंट आहेत सेकंड ॲरेमध्ये आपण चेक करूया आपल्या. ओके ॲज पर द नोट्समध्ये काय घेतलं होतं, 1 2 1 3 1 हे कॉपी करतो सिम्पलचं मी इकडे. हा झाला फर्स्ट सब ॲरे आपला. प्रत्येक एलिमेंटमध्ये कॉमा असला पाहिजे, सो कॉमा देऊया. आता सेम घेण्याचा प्रयत्न करू आपण. हे 1 ओके 2 3 1 कारण आपल्याला आउटपुट आलेलं कळलं पाहिजे त्याच्यासाठी आपण सेम जाणार आहोत गाईज. ओके आपण एंटर करतानाही पण इकडलंच ओके हेल्प घेऊया फर्स्ट ॲरेसाठी. आणि थर्ड ॲरे म्हणजे काय, 111. सो याच्यामध्ये काय केलं आपण, 3 टाइम्स 1 स्टोअर केलेलं आहे. सो 1 1 1 हे झालं तुमचा सेकंड ॲरे गाईज. फर्स्ट ॲरे आपल्याला एंटर करायचा आहे ओके अशा वेनी. सो आपण या वेनी आपण एंटर करू फर्स्ट ॲरे आपला. ठीक आहे. सो ओके फाईन गाईज. ठीक आहे, हा झाला माझा ॲरे सेकंड क्रिएट. आता ॲरे सेकंड क्रिएट तर झालेला आहे, मला काय करावं लागेल, त्याला स्टोअर करायचं आहे. तर स्टोअर करण्यासाठी माझ्याकडे अजून एक ॲरे असला पाहिजे. तो काय असेल, ARR रिझल्ट नावाचा. ARR रिझल्ट ॲरे रिझल्ट. सो हा पण कसा असला पाहिजे गाईज, सेम याचा असला पाहिजे.
2 इंटू 2चा. आता याचे साईज काय असल्या पाहिजे, याला साईज देणं आपल्याला गरजेचं आहे. सो व्हॉट विल बी द साईज, तो आपण इकडे साईज त्याला हार्ड कोडेड आपल्याला साईज द्यायला लागेल गाईज. आता जर तुमच्याकडे हार्ड कोडेड साईज नसेल तर लक्षात घ्या तुम्हाला तुमच्या ॲरेची साईज कॅल्क्युलेट करावं लागेल आणि ती साईज इकडे प्रोव्हाइड करावं लागेल. क्लिअर गाईज, क्लिअर आहात का? हॅलो, Yes, sir. ठीक आहे. आता ॲरेची साईज कॅल्क्युलेट करायची तर कशी करायची, तुमच्याकडे ॲरे आहे काय नावाचा, ARR2 नावाचा पण ॲरे आहे आणि ARR1 नावाचा पण ॲरे आहे. तुम्ही दोन्हीपैकी कुठल्याही ॲरेची साईज घेऊ शकता. जसं की मी तर काय करतो, न्यू करते काय इंट, आता रो आणि कॉलम मला इथं प्रोव्हाइड करायचे आहेत. व्हॉट इज द साईज ऑफ रो, देन आय विल यूज सपोज ARR1 या ARR2 जे काय यूज करायचे ते यूज करा. मी 2 करतोय, डॉट लेंथ करतोय, म्हणजे हे झालं माझे कॉलम. जेवढे कॉलम ARR2 मध्ये आहेत किंवा ARR1 मध्ये आहेत तेवढेच कॉलम मी कुठे क्रिएट करतोय, रिझल्ट ओके ARR रिझल्ट मध्ये क्रिएट करतोय. गाइस क्लिअर आहात तुम्ही इकडे? येस सर. ठीक आहे. अँड एक्झॅक्टली सेम तुम्हाला काय करायचं गाईज, इकडे पण करायचं आहे. आता हे कसं मॅनेज करता येईल तुम्हाला, तर तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या ॲरेमध्ये काय आहेत, सगळे कॉलम जे आहेत ते सेमच आहेत, रो पण सेम आहेत, कॉलम पण सेम आहेत. ओके, प्रत्येक कॉलममध्ये सेम रो आहेत. सो आपण काय करू शकतो, इकडे डायरेक्टली या वेने आपण करू शकतो ARR2 असेल किंवा 1 असेल ऑफ 0 डॉट लेंथ. क्लिअर आहात गाईज? हॅलो सर हा 0 कोण वापरला? हा 0 का वापरला, कारण कसं आहे आपल्याला कॉलम द्यायचे तिथे, बरोबर. येस. प्रत्येक रोला किती कॉलम असली पाहिजे हे द्यायचे. तर आपण काय केलं, ARR2 मधलं 0 कॉलम म्हणजे कुठला, 0th रो म्हणजे हा, बरोबर, पूर्ण. ओके सर. करेक्ट. सो यामध्ये किती एलिमेंट आहेत हे बघायचं आपल्याला आणि तेवढेच एलिमेंट कुठल्या रो मध्ये असले पाहिजे, ARR रिझल्टच्या रो मध्ये असले पाहिजे. क्लिअर आहात गाईज? येस सर. ओके, असं करा किंवा तुमच्याकडे स्टॅटिक डेटा असेल तर स्टॅटिक करा. आता जर या वेळी जर गेलोत आपण ARR मध्ये गेलोत, तुम्हाला माहिती आहे रो साईज आणि कॉलम साईज तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे. सो तुम्ही त्या रो साईज आणि कॉलम साईजनुसार काय करू शकता, हा ॲरे क्रिएट करू शकता. किंवा जर सपोज तुम्ही कन्सिडर करा की तुम्ही याला साईजच दिली नाही तर काय होईल, चालणार आहे का? असं चालतंय की नाही? इट्स वर्किंग और नॉट? नॉट वर्किंग. क्यों? तो उसको पता ही नहीं होगा ना कि कितने एलिमेंट लेने हैं. कितने एलिमेंट लेने हैं ये पता ही नहीं होगा. ओके फाइन, एज पर द ओके, ठीक है. अभी यहाँ पे जो भी बात कर रहा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पता ही नहीं कि उसको कितने एलिमेंट लेने हैं, राइट. ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि उसको साइज ही नहीं देता हूँ मैं, कौन सा कॉलम साइज मैंने उसको स्किप किया है. व्हाट विल हैपन चेक करेंगे यहाँ पे. तो एडिशन करना है, मेरे पास दोनों तीनों एरे क्लियर है गाइज, रेडी है. सो एडिशन करना है, तो आपको पता ही है एडिशन करना है मतलब पूरे के पूरे क्या करना है, एरे को आपको प्रोसेस करना है. क्लियर गाइज? ठीक है, रो एंड कॉलम वाइज एरे को प्रोसेस करना है. रो वाइज प्रोसेस करना है तो एक लूप चलेगा. सपोज आई वाला लूप लेते हैं यहाँ पर, जो आपके क्या करेगा, रो को प्रोसेस करेगा. स्टार्ट फ्रॉम 0, ऑलवेज एरे है तो 0 से स्टार्ट होगा. आई इज लेस देन क्या करना है, अभी दोनों में से गाइज आप कोई भी एक एरे का साइज ले सकते हो यहाँ पे. जैसे कि मैं आपके ARR1 डॉट लेंथ लेता हूँ, क्योंकि दोनों एरे का लेंथ सेम है इसलिए हम इस तरीके से ले सकते हैं. ARR1 का लेना है 1 का लो, 2 का लेना है 2 का लो. क्लियर गाइज? यस सर. ठीक है, ये हो गया. फिर आपको सेकेंड एरे यहाँ पे सेकेंड लूप लेना पड़ेगा जे को प्रोसेस करने के लिए, मतलब आपके कॉलम को प्रोसेस करने के लिए. सो इंट जे इक्वल टू इनिशियली 0, ओके, सेमीकोलन, जे इज लेस देन क्या करना है, ARR1 ऑफ आई डॉट लेंथ, मतलब हर एरे का सब ओके क्या होगा, सब एरे का लेंथ लेंगे, जे को प्लस प्लस करेंगे. क्लियर है गाइज आप लोग? यस सर. अभी हमें यहाँ पे क्या करना है गाइज, अभी जस्ट वी नीड टू ऐड द डेटा. अभी कैसे ऐड करेंगे, आपको तो मैंने यहाँ पे दिखाया था कि क्या हो रहा था, फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एरे का सेकेंड एलिमेंट, राइट. फर्स्ट एरे का ओके, फर्स्ट एरे में से मतलब फर्स्ट एरे मतलब फर्स्ट रो बोल रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एरे के फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एरे के सेकेंड फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और
फर्स्ट सेकेंड एरे के फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। क्लियर गाइज? यस सर। ठीक है, सो सिंपल सा एडिशन करना है आपको, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो आपको दोनों एरे को अभी यहाँ पे यूज करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा देखो, ए आर आर वन ऑफ आई मतलब फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ, ए आर आर वन के फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर का जे मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट प्लस ए आर आर टू ऑफ आई ऑफ जे। क्लियर है गाइज आप लोग? यस सर। ठीक है, सो इसके कारण अभी हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ओके फाइन। तो इसको स्टोर करना है आपको कहाँ पे, ए आर आर रिजल्ट ऑफ आई ऑफ जे। यहाँ पे भी तो मल्टीपल एलिमेंट्स रहेंगे, राइट? क्लियर गाइज आप लोग? यस। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द वे टू मैनेज योर एरे। अभी एरे को उसके पहले आपका ये जो ओके एरे 2 है, अगर इसको आपको प्रिंट करना है तो आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है गाइस। क्लियर है? यस सर। इसको प्रिंट करना है तो क्या करना है, आपके पास प्रिंट वाला लॉजिक तो है, मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, तो ये पहले एरे प्रिंट करेंगे हम, यहाँ पे फर्स्ट एरे बोलकर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, मैसेज देता हूँ यहाँ पे सिंपल सा एरे 1। इस तरीके से मैसेज दिया एरे 1 का, और जस्ट सेम उसी तरीके से एरे 2 को प्रिंट करना है मुझे उसके नीचे। सो आई विल प्रिंट एरे 2। अभी एरे 2 यहाँ पे बना है तो मुझे यहीं पे प्रिंट करना पड़ेगा उसको। सो एडिशन में मैं क्या करता हूँ, एरे 2 को प्रिंट करता हूँ मेरे। ठीक है, एरे 2 को प्रिंट करना है तो यहाँ पे एरे 2 के एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे हमें, हमेशा एरे 2 के बारे में बात करना पड़ेगा। क्लियर हो गाइस आप लोग? हेलो? यस सर। ये एडिशन होगा यहाँ पे, सो यहाँ पे कमेंट देता हूँ, एडिशन लॉजिक हो गया। एंड एडिशन होने के बाद आपको इस एडिशन वाले एरे को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए आपके पास लॉजिक है, ये एरे एडिशन। यहाँ पे इस तरीके से मैं कुछ प्रिंट करूँगा, यहाँ पर स्लैश एन देता हूँ, ये आपको समझ में आएगा प्रॉपर। तो एरे एडिशन के लिए आपका एरे ही अलग है, ए आर आर रिजल्ट नाम का एरे है, तो जस्ट नीड टू रिप्लेस इट हियर। वो एरे क्या हो जाएगा गाइज, अपने आप प्रिंट हो जाएगा। क्लियर होगा गाइज आप यहाँ पे क्या किया हमने? कोई डाउट किसी को? हेलो? हेलो? स्क्रीन गायब बीच में, क्या स्क्रीन गायब हो गई, नहीं दिखाई दे रही है स्क्रीन? नहीं दिखाई दे रही। सब दिखते हैं सर। अच्छा, आनंद को नहीं दिखाई दे रही है, शायद आनंद आपका यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, दिख जाएगा थोड़ी देर। अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है हो सर। आनंद को? हाँ सर, वो नेटवर्क इशू है थोड़ा आज के दिन का, इसलिए प्रॉब्लम हो रही ठीक है, दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल? नहीं नहीं दिखाई नहीं दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, ओके। सो चलो मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ, फिर से आपको अगर स्क्रीन आ जाता है तो फिर से आप क्या करो, एक बार रीज्वाइन करने की कोशिश करो। डिस्कनेक्ट हो जाओ और फिर से ज्वाइन हो जाओ। हो गया?
अरे होगा कि नहीं अभी ये ज्वाइन? ठीक है गाइज, ओके। सो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखा था आप लोगों को। सो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपको मेथड कॉल करना पड़ेगा जो एडिशन नाम का मेथड लिया हमने। सो map डॉट एड एडिशन नाम की मेथड कॉल करता हूँ यहाँ पे आफ्टर शो करने के बाद। क्लियर हो गाइज यहाँ तक आप लोग को? कोई डाउट है किसी को? हेलो? नो सर। ओके फाइन, ठीक है। सो देखो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ आपको। ओके, सिंपल गेट मल्टी एरे प्रोग्राम को पहले गेट मतलब डेटा हमें पहले एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एंटर एरे रो साइज, एरे 1 के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। 3x3 का मैट्रिक्स देता हूँ, 3 रो 3 कॉलम 9 एलिमेंट्स हमें एंटर करने हैं। तो एंटर जो किया जाएगा डेटा वो इसके हिसाब से होना चाहिए। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंटर करेंगे डेटा को। तो देखना क्या एंटर करना है, 1, देन दूसरा एलिमेंट एंटर करना है 2, देन तीसरा करना है 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2। ठीक है, देन थर्ड रो एंटर करना है मुझे, थर्ड सब एरे 1, 5 एंड 6। इस तरीके से मैंने तीनों सब एरे को प्रिंट किया। फर्स्ट सब एरे, सेकेंड सब एरे आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये थर्ड, ओके, फर्स्ट सब एरे इस तरीके से। अब यहाँ पे एंटर करते ही क्या होगा आपका गाइज, देखो पहला एरे प्रिंट हुआ, दूसरा एरे प्रिंट हुआ एंड ओके यहाँ पे डिबग लग गया है, शायद डिबग मोड में रन किया होगा मैंने इसको। ठीक है, तो ये दूसरा मतलब ये एरे 2 है गाइस, सेम दोनों भी एरे चेक करना, ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों एरे प्रिंट हुए हमारे। फर्स्ट सब एरे, फर्स्ट एरे मल्टी डायमेंशनल एरे, सेकेंड मल्टी डायमेंशनल एरे, करेक्ट है ऐसा ही। अभी रिजल्ट हमारा इस तरीके से आना चाहिए, बराबर? क्लियर हो? यस सर। ठीक है, अभी ये जो डिबग लगाया मैं इसको क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ डायरेक्टली। सो इट विल रन डायरेक्टली एंड यू कैन चेक इट हियर, एक्सेप्शन नल पॉइंटर एक्सेप्शन विल बी देयर। सो कहाँ पे है आप जाके देखोगे तो एरे के इस पर्टिकुलर ओके यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुकी है हमें, क्योंकि आपको पता है कि हमने यहाँ पे एरे तो यूज़ किया है 1, 2 एंड रिजल्ट, एंड आप चेक कर सकते हो रिजल्ट को मैंने यहाँ पे साइज़ ही नहीं दिया है। तो यहाँ पे रिजल्ट को साइज़ देना पड़ेगा हमें। यहाँ पे 2 यूज़ किया है तो 2 ऑफ 0 करेंगे हम यहाँ पे डॉट लेंथ, या फिर डायरेक्टली आप एरे का जो ऊपर का साइज़ लिया है वो साइज़ से काम करवा सकते हो, या फिर एक ही साथ आप तीनों भी एरे कर सकते हो। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो किस तरीके से वर्क होगा। अभी यहाँ पे जाके रन करता हूँ एप्लीकेशन को, देखो रन हो रहा है। साइज़ दे दो 3, 3, ओके। डेटा एंटर करना है तो अभी यहाँ पे एंटर करने के लिए आपको ये वाला फाइल ओपन करना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग डेटा एंटर करना है। तो 1, 2, 3, 1, 4, 2, 1, 5, 6 ये हो गया फर्स्ट एरे आपका, सेकेंड एरे एंड दिस इज़ योर आउटपुट एरे। गाइस सेम है क्या आउटपुट? देखना कुछ गलत तो नहीं हुआ है। यहाँ पे गलती किया था मैंने, वो गलती भी इधर सुधार के दिया है। क्लियर गाइस? यस सर। तो दिस इज व्हाट सिंपल एरे को ऐड कैसे करना है। जैसे आपने ऐड किया है वैसे ही आप क्या कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है आपको चेक करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि अभी ये हमारा काम नहीं है कि ये मैट्रिक्स के अंदर एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते बैठेंगे। ठीक है, अभी गाइज मैंने आपको यहाँ पे बता के दिया है कि ये कैसे होता है, ओके। एरे को कैसे प्रोसेस किया जाता है, मल्टी डायमेंशनल एरे को हाउ टू प्रोसेस वो मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी आपका थोड़ा सा काम बनता है कि आप इसको एक्सप्लोर करो, इसको और थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे जाके क्या करो, आप इसको मैनेज कर सकते हो, ओके, इसको हैंडल कर सकते हो। क्लियर गाइज? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है गाइज, ओके। तो ये हो गया आपका एरे का सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पर, ठीक है, एडिशन का। तो आप यहाँ पे ट्राई करो सब्सट्रैक्शन वगैरह करने का, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने का किस तरीके से आता है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे एक प्रोग्राम, लॉजिकल प्रोग्राम बताता हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है यहाँ पे देखना, समझ लो कि क्या करना है आपको और कैसे करोगे ये भी आप ओके मुझे इन्फॉर्म करोगे
कि आपको क्या करना है, आपके पास 2 एरे दिए हुए। चलो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था साइज़ का, दोनों एरे को 3 एरे बनाए, तीनों एरे को साइज़ जो है वो इशू आ रहा था, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, एंटर एरे साइज तो करके ले रहे हो, एंटर एरे साइज, एरे का रो साइज, कॉलम साइज। तो गाइज आप यहाँ पे क्या करो, तीनों के तीनों एरे फर्स्ट बना लो। तो आपको क्या बनाना था, एरे 1, एरे 2 एंड आपका सपोज रिजल्ट एरे। तो एरे 2 बनाया, ARR रिजल्ट बनाया आपने। तो आपने ये ग्लोबली बना लिया एक ही जगह पे, और साइज ले लिया आपने गाइज यहाँ पर। जब आप साइज लेते हो यहाँ पे कहाँ पे लिया है साइज, तो देखो ये रो साइज यानी कॉलम साइज आपने यूज किया है। आपने एरे भी एंटर करके लिया, फर्स्ट एरे, सेकंड एरे। अभी आपको सेकंड एरे भी एंटर करके लेना है, तो आप यहाँ पे मैसेज बोलो एंटर एरे 1। अभी यहाँ पे आपको पता ही कौन सा एरे यूज कर रहे हैं, एरे 1 पर्टिकुलर 9 एलिमेंट, एंटर एरे 1 9 एलिमेंट्स ऑफ एरे, ऐसा करते हैं। चलो ठीक है, 9 एंटर 9 एलिमेंट्स एरे 1 के 9 एलिमेंट एंटर करो। ठीक है, ये होने के बाद एरे 2 के एलिमेंट्स आपको एंटर करना है। तो उसके लिए आपको फिर से इसको कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है गाइस, इसको एरे 2 को एंटर करना है। तो यहाँ पे मैसेज दोगे ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एंटर एरे 1 डेटा। तो दोनों एरे का डेटा गेट करके लिया है हमने। तो एरे 1 की जगह पे यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल एरे 2 यूज करना है, जहाँ जहाँ पे भी एरे 1 है। तो आपको हार्ड कोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको रिमूव करने की कोशिश यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, सो ये TW2 करेंगे यहाँ पे। ओके, ये रो एंड कॉलम तो सेम ही रखेंगे हम यहाँ पे, बट उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने एरे 1 क्रिएट किया है सेम वैसे आपको क्या करना है, एरे 2 एंड एरे 3 क्रिएट करना है। क्लियर हो आप यहाँ पे, एरे 2 रिजल्ट एरे को भी इस तरीके से क्रिएट करना है। तो तीनों एरे आपके गाइज सेम साइज के बनेंगे, सेम रो एंड सेम कॉलम। क्लियर गाइज आप यहाँ पर, यस सर। ठीक है। तो ऐसा अगर करते हैं हम इस तरीके से, तो हमें ये जो हम यहाँ पे ले रहे थे ये चीज़ लेने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और तो और आपको यहाँ पे मैं और एक चीज़ यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देता हूँ कि ये एरे 2 को आपने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट किया है। तो एरे 2 को भी यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे, ये निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे सिंपल एडिशन वाला ही लॉजिक रखूंगा मैं, और एडिशन वाले को प्रिंट शो करने का काम तो आप यहाँ पे शो मेथड में कर रहे हो। तो आपने ये शो किया, क्या है, एरे 1 को शो किया। एग्जैक्ट सेम एरे 1 होने के बाद आप एरे 2 को शो करो। यहाँ पे एरे 2 का डेटा आपके पास है। तो अभी यहाँ पे जो कर रहे हो एरे 1 डॉट ओके एरे 2 डॉट लेंथ वगैरह, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि सेम आने वाला है। तो ये पहला रो साइज चल रहा है तो रो साइज यूज़ करो, और यहाँ पे एरे 2 डॉट आई ऑफ वट एवर करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कॉल साइज भी आप कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर, सेम वे से रो साइज कैन रिप्लेस दिस पर्टिकुलर थिंग एंड कॉल साइज विल रिप्लेस दिस पर्टिकुलर थिंग। गेटिंग गाइज? हेलो, यस सर। आपको पता है अभी ये सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे भी रो साइज और यहाँ पे ये रिप्लेस होगा विथ कॉल साइज। ओके गाइज, फाइन। यस Okay, सर। तो देखना काफ़ी मतलब अभी यहाँ पे सॉर्टेड तरीके से हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, राइट, प्रॉपर वे से। यहाँ पे भी अगर आप ये प्रिंट कर रहे हो तो ये भी प्रिंट करने के लिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यू कैन रिमूव इट एल्सो, क्योंकि आपके ARR रिजल्ट का भी सेम रो है, सेम ओके कॉलम है। तो यहाँ पे इसको भी आप मैनेज करवा सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। ओके गाइस, क्लियर हो सब लोग? हाँ सर। ओके, तो इतना सॉर्टेड आप इसको बना चुके हो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेव किया इसको ही रन करके देखो। अभी दोनों भी एरे आपको क्या करना है, यूजर से लेना है अभी। ओके, एंटर एरे रो साइज दिया आपने 2, कॉलम साइज दिया आपने 2 या 3, जो भी देना है आपको 3 दे दिया, चलो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आपको एंटर करने 6 एलिमेंट फॉर एरे 1, 1 2 3 4 5 6। ये पहले एरे के एलिमेंट हो गए। ये आपका फर्स्ट एरे, ओके, फर्स्ट एरे में से सेकंड ओके सब एरे, ये फर्स्ट सब एरे
एंड इसके नीचे का जो है थर्ड एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट सेकेंड सब एरे के है, फर्स्ट एलिमेंट के। एंटर किया, अभी एंटर 6 एलिमेंट फॉर एरे 2, फिर से 2 के आपको एलिमेंट को ऐड करना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखना 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5, इस तरीके से एलिमेंट, एंड ये 1 6 ये भी लगेगा मुझे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट एरे क्या आता है मैं पहले आपको वो चेक करने के लिए बोलूँगा आपको, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं, पहले प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा। तो देखना ये प्रिंट किया है, ये इस तरीके से कॉपी कर लो। आपको अगर वेरीफाई करना है कि यार सही में दे रहा है कि नहीं है, इसको पेस्ट कर लो यहाँ पर इस तरीके से। तो ये आपका बनेगा फर्स्ट एरे। देन आपके पास आपने प्रिंट तो किया ही हुआ है सेकेंड एरे को, ये सेकेंड एरे है जो आपका थोड़ा सा अलग डेटा स्टोर किया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, इसको प्रिंट किया यहाँ पर, कट करता हूँ इसको, ये यहाँ पे डाल दिए। तो अभी इसका एडिशन बताओ मुझे, चलो 12 12 14 14 16, वेरी गुड, राइट। अभी यहाँ पे 18 20 ओके 22, राइट। इस तरीके से आपका एरे का रिजल्ट आना चाहिए जो एडिशन है। ओके, चेक करते गाइस कि ऐसा ही आता है क्या। ओके, ऑलरेडी एग्जीक्यूट तो हुआ है, रिजल्ट भी आया है, एंड यू कैन चेक इट हियर। मैं रिजल्ट भी कॉपी करता हूँ यार, अदरवाइज यू कैन जस्ट ओके कंपेयर हियर। सो देखो आपका ये रिजल्ट और ये रिजल्ट हमारा सेम है क्या, हमने मैन्युअली किया था और ये हमारे प्रोग्राम से किया है गाइस सेम। हाँ सर। यस सर। ओके, तो इस वे से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो एडिशन को, सब्सट्रैक्शन को, व्हाटएवर। अभी आपको जो मैं अब यहाँ पे बोलने वाला था कि आपको क्या करना है, आपके पास 2 सब मैट्रिक्स है सपोज, ओके 2 सब मैट्रिक्स में, ये काफ़ी बार पूछा हुआ ओके क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, तो ऐसे सब मैट्रिक्स सपोज यहाँ पे आपके पास है, तो मैं इसको पहले सपोज आपको पेंट में लेके दिखाता हूँ, आपको वहाँ पे इजीली समझ में आएगा। चेक करना गाइज, यहाँ पे आपको उसको करना है, आपको ये मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे सकता हूँ, इसको सिंपल लॉजिक बताऊंगा मैं, एंड यू कैन ओके डू इट योर सेल्फ। सो गाइज देखो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ओके जो 1 है 2 स्टोर किया, यहाँ पे 3 स्टोर किया, 3 इंटू 3 का मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइज ज़्यादा देता हूँ इसको, यहाँ पे 2 1 3, ओके इस तरीके से 3 इंटू 3 का लेता हूँ, 4 1 5, ये हो गया फर्स्ट एरे मेरा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एरे जैसा हुआ है, वैसे ही मैं क्या करना चाहूँगा, सेकेंड एरे लेना चाहूँगा यहाँ पे, ये मेरा सेकेंड एरे हो गया। सेकेंड एरे में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सपोज 4 कर देता हूँ, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे कुछ 6, यहाँ पे 1, ठीक है। ये सेकेंड एरे हो गया, मेरे पास 2 सब एरे हो गए गाइस, क्लियर? यस सर। ठीक है, सो ये हो गया आपका फर्स्ट सब एरे। मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर दिखाऊंगा मैं आपको तो इस तरीके से आपको गाइज इसमें से क्या करना है, आपका जो रिजल्ट रहेगा आउटपुट किस तरीके से होना चाहिए। नाउ आउटपुट की बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट विल बी द आउटपुट। आपको ऐसे एलिमेंट्स प्रिंट करने इसके अंदर के जो एलिमेंट्स सेम पोजीशन पे, सेम रो में, सेम कॉलम में रिपीट हुए। अभी देखो सेम कॉलम में सेम जगह पे रिपीट होने वाले एलिमेंट्स में अगर आपको बताऊँ, ये 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी क्या है 1 है। क्लियर गाइज? यस। इसका इंडेक्स नंबर क्या बनेगा? 0 0 रो 0 कॉलम। कॉलम। अभी ये 0 रो 0 कॉलम पे यहाँ पे भी मैं चेक करूंगा 0 रो, और इसका भी क्या है कॉलम। 0 कॉलम, दोनों सेम है एलिमेंट। यस। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, सो आई विल प्रिंट 1 हियर। क्लियर गाइज? यस सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट एलिमेंट को जाता हूँ, ये 2 को, 2 यहाँ पे है 0 ऑफ 1 पे, 0 रो ओके फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे देखूंगा 0 रो फर्स्ट कॉलम पे क्या है 3 है, दोनों सेम है क्या? नो। नो। तो मैं इसको प्रिंट करूंगा क्या?
नहीं। तो किसको प्रिंट करना है? नेक्स्ट एलिमेंट को जाऊंगा। ओके, 0 रो सेकेंड कॉलम, 0 रो सेकेंड कॉलम, दोनों में सेम है डेटा। यस। सो आई जस्ट वांट टू प्रिंट इट। सो क्या प्रिंट करूंगा इसके बाद? क्लियर क्या गाइस? यस। इसके बाद बारी आती है इसकी। ओके, 1 रो 0 कॉलम, 2 है, 1 रो 0 कॉलम 2, बोथ आर द सेम, सो आई विल प्रिंट इट। इसको मैं प्रिंट करूंगा। सपोज नीचे करना है, एक के नीचे एक करो, एक के सामने एक करना है, आपको मर्जी। 2। ओके गाइस, क्लियर हो आप लोग? ये देखेंगे 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, बोथ आर डिफरेंट, नो नीड टू प्रिंट। 1 रो सेकेंड कॉलम, ओके, 1 रो सेकेंड कॉलम, नो, नॉट इक्वलिटी। ओके, रो 2 कॉलम 0, रो 2 कॉलम 0, बोथ आर द सेम, 4 4, so print this, so it will print you 4। नेक्स्ट एलिमेंट आपका होगा जो प्रिंट 4 है, देन ये भी प्रिंट होगा कि नहीं होगा? यस। यस। तो इट विल प्रिंट यू 1 इस तरीके से। तो इतने ही एलिमेंट आपको प्रिंट करने हैं जो ओके फर्स्ट एरे में सेम पोजीशन पे एंड सेकंड एरे में भी सेम पोजीशन पे सेम नंबर आता है तो प्रिंट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। आप क्या करोगे गाइस यहाँ पर? व्हाट विल बी द लॉजिक? पोजीशन एंड नंबर, इफ एल्स कंडीशन लगा के। ओके फाइन, पोजीशन और नंबर आपको चेक करना पड़ेगा, अगर सेम आता है तो प्रिंट करेंगे, अदरवाइज तो प्रिंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पोजीशन चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं गाइज। अगर आप इसी तरीके से करोगे, देखो यहाँ पर आप यहाँ पे ये प्रोग्राम में देखोगे तो यहाँ पे एडिशन कर रहे हो, एडिशन में, राइट है ना? किधर है एडिशन वाला? ये वाला। तो ये क्या कर रहा है आपका? एडिशन कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एरे के सेम एलिमेंट सेकंड एरे के भी सेम एलिमेंट ले रहा है, राइट? हाँ या ना? यस। ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, काफ़ी इजी है। कुछ भी यहाँ पे ओके एक नया मेथड क्रिएट करते हैं यहाँ पे उसके लिए। शो सेम डेटा या सेम एलिमेंट, कुछ नाम देते हैं इसको, एंड कुछ नहीं करना है गाइज, हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करेंगे फर्स्ट ही, राइट? सो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि आपको पता ही हम क्या कर रहे हैं। फॉर का लूप, जे का लूप, आई का लूप, जे का लूप, क्योंकि दोनों में मुझे चाहिए क्योंकि इटरेशन करने हैं। यहाँ पे ये ना करते हुए मैं क्या करूँगा गाइज, कुछ एडिशन तो करना नहीं है, तो नो नीड ऑफ एडिशन। ARR ऑफ 1 ऑफ ARR ऑफ आई ऑफ जे मैं चेक करूँगा इक्वल टू ARR ऑफ 2 ऑफ ARR 2 के बीच में आई ऑफ जे चेक करूँगा। दोनों अगर सेम आते तो मैं क्या करूँगा गाइज, क्या करना है? इफ लगाना है। इफ में चेक करेंगे, अगर दोनों सेम है तो ही प्रिंट करना है उस एलिमेंट को। ओके, अभी आप किसी में से भी एक में से प्रिंट करो, दोनों में तो सेम डेटा है सेम लोकेशन पे, तो ARR में से प्रिंट करो या ARR 2 में से प्रिंट करो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। ARR ऑफ 1 ऑफ आई ऑफ जे, यहाँ पे ये कर दूंगा, ये हो गया। अभी एक लाइन में प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गाइज, स्पेस वाला यूज करना, फंडा यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये स्पेस देके एक लाइन में प्रिंट करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा आराम से गाइज। क्लियर हो? यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पे मैसेज देना है तो आप दे दो सेम एलिमेंट इन बोथ एरे। ये कुछ मैसेज हो गया हमारा, जो भी देना चाहिए था वो यहाँ पे अभी शो करेंगे, शो सेम डेटा, इसी को कॉल करना पड़ेगा एडिशन के बाद। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एडिशन भी होना चाहिए आपका।
तो ये शो सेम डेटा, इसको मैं सेव करता हूँ गाइस, रन करूँगा तो आप चेक करना कि क्या होता है। रन करूँगा, पहले आपको एरे एंटर करवाने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको एंटर करा के दिखाता हूँ। फर्स्ट 3x3 का एरे बनाना है मुझे, ठीक है। 3 एलिमेंट्स एंटर करो एरे 1 के लिए, 1 2 3, सो यहाँ पे 1 3 4, ओके 2 3 1, ये हो गया मेरा फर्स्ट एरे गाइस, ओके। सेकेंड एरे में अभी यहाँ पे सेकेंड एरे भी मुझे इसी तरीके से देना पड़ेगा कुछ, 1 ओके 1 2 एंटर 2, ये हो गया फर्स्ट सब एरे इन योर एरे 2। सेकेंड सब एरे में मैं क्या करना चाहूँगा, वो 2 3 2 3 कितना हुआ था यहाँ पे, देखो ये 2 3 4 आता है, यहाँ पे 4 देता हूँ, मतलब ये सेम आएंगे। फिर उसके बाद इसमें का लास्ट वाला जो है 3, सेकेंड वन, ओके 3 देता हूँ, 1 3 3, इस तरीके से। और एक बच गया क्या, देखना फर्स्ट एरे, सेकेंड एरे, एडिशन एंड कॉमन एलिमेंट, देखो कहाँ कहाँ पे है, ये कहाँ से है, इसका 1 इसका 1, राइट, सेम है ये दोनों। हेलो, यस तो 1 प्रिंट किया, 2 सेम है क्या, इधर 2 इधर 2 है क्या, नो तो इसको प्रिंट नहीं किया। 3 सेम है क्या, 3 है 5 है, सेम है नहीं है, तो 3 को भी प्रिंट नहीं किया। फिर इसके बाद इसने क्या किया, 1 3 नहीं करना है, 3 6 नहीं करना है, 4 8 नहीं करना है, 2 3 नो, 3 6 नो, 1 ओके 1 3 3 करना है, ये देखो 3 3 प्रिंट किया इसने 3, गाइस क्लियर हो। 4 यस सर। 4 प्रिंट किया है, 4 4 भी, ठीक है। 2 बार 3 किया है क्योंकि 3 3 2 बार सेम आया, यहाँ पे भी सेम है, ये भी सेम है, उसके नीचे का ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये भी 3 किया है, ये भी 3 किया है, 4 सेम है, 4 सेम है, 4 प्रिंट किया है, 1 सेम है, 1 सेम है, 1 को प्रिंट किया है फिर से। गेटिंग गाइस? यस सर। तो दिस इज व्हाट योर सिमिलर एलिमेंट कैसे प्रिंट करना है, ये चीज़। या फिर कभी कभी क्या होता है पता है आपको, कोई भी मतलब ऐसा बोल सकता है कि अभी सिमिलर एलिमेंट तो आपने प्रिंट किया, अभी आपको क्या करना है, जो एलिमेंट सेम नहीं है इसी को प्रिंट करना है। क्या करेंगे, उसी कंडीशन में एल्स पार्ट प्रिंट करेंगे सर। एल्स पार्ट प्रिंट करेंगे तो दोनों भी प्रिंट होंगे ना, सेम वाले भी प्रिंट होंगे, विदाउट सेम वाले भी प्रिंट होंगे, राइट। कंडीशन को नॉट इक्वल टू दे सकते हैं सर। राइट, यू कैन यूज नॉट इक्वल टू कंडीशन। क्लियर गाइस? हेलो, यस सर। ओके फाइन, ठीक है, ये हो गया। ओके ओके, या फिर आपको ऐसा भी बोला जाता है कि ऐसे नंबर फाइंड करो जो दोनों सब मैट्रिक्स में, सब एरे में, आपके एरे में, मल्टी डायमेंशनल एरे में सेम है, उसका एडिशन निकालो। मतलब ये जो सेम नंबर है पूरे के पूरे, इसका एडिशन आना चाहिए, सॉरी इसका एडिशन आना चाहिए। और आपको ये बोला जा सकता है कि सेम नंबर का एडिशन लाओ और जो डिफरेंट नंबर है उनका एडिशन अलग से लाओ। क्लियर गाइस? यस सर। तो आपको ये असाइनमेंट ले लो, क्या, सेम नंबर फाइंड करो, इन दोनों एरे में सेम पोजीशन पे सेम नंबर है तो उसको प्रिंट करना है एंड उसको एडिशन भी निकालना है। क्लियर गाइस? तो आपको क्या होना चाहिए, अगर ये आपके पास डेटा है तो आपका इसका एडिशन आना चाहिए, 4 4 8 4 12, तो इसके सामने 12 आना चाहिए, राइट। हेलो, ठीक है। एंड जो नंबर इसके अलावा जो भी सेम सेम नहीं है, जैसे कि ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 2 और 1 का एडिशन, ओके 3 है 2 है, ओके ये 2 है, ये तो सेम है, ये सेम है, ये डिफरेंट है, ये बाकी की जो रिमेनिंग है उन तीनों का, उन रिमेनिंग चीज़ों का एडिशन आना चाहिए आपका। क्लियर गाइस? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों का भी एडिशन निकालने के लिए बोला जा सकता है। ओके, और चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगा आप लोगों को, ये आपका एरे है, मैं कुछ यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, क्योंकि ये जो सेलेक्टेड किया है हमने, सेलेक्ट किए, निकल जाएगा ये पूरा।
ठीक है, ये आपके पास एरे है। देखना अभी यहाँ पे मैं और एक यहाँ पे एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर आपको 2 एरे दिए जा सकेंगे, 2 एरे दिए हुए होंगे। आपको क्या करना है, ओनली कॉर्नर एलिमेंट्स को प्रिंट करना है और उसका एडिशन भी करना है। अब इसके जो भी कॉर्नर एलिमेंट्स है ये प्रिंट करो। अभी फिलहाल के लिए आप ये कंसिडर करो कि आपके पास सिर्फ ये एरे है, इसके बारे में सोचो ही मत, ये आपके पास नहीं है, कंसिडर करो। मैं एक एरे लूँगा, मैट्रिक्स एरे, इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरे, एंड इसके जो भी कॉर्नर एलिमेंट है इसी को प्रिंट करना है। मतलब 1 3 4 एंड 5 ये मेरा इस तरीके से आए, ओके। और ये प्रिंट होगा और इसका एडिशन कितना आता है बताओ? 13। तो इसका एडिशन भी आपको पूछा जा सकता है कि इसका एडिशन कराओ कॉर्नर एलिमेंट का। तो आपको ये प्रिंट भी करना है, ओके, और इसका एडिशन भी करना है। क्लियर गाइज? यस सर। ये असाइनमेंट नंबर हो गया आपका 2। क्लियर गाइज आप लोगों को? यस सर। कोई डाउट किसी को? हेलो, नो सर। ठीक है। आपका 3rd असाइनमेंट इस तरीके से होगा आपको, ये असाइनमेंट नंबर 3, जहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास ये 2 एरे है, 2 एरे में से ये इसके कॉर्नर, इसका कॉर्नर निकालो। क्या है? 1 3 4 6। क्लियर? अभी देखो इधर ही यहीं पे खेलना होता है उनको। अभी क्या करो, एडिशन करो। क्या एडिशन होगा? इसका एडिशन होगा, प्रिंट करना है। इसका एडिशन प्रिंट करो, इसका प्रिंट करो और इसका प्रिंट करो। क्लियर गाइज? मतलब कैसे? 1 प्लस कितना आएगा? 1 फिर दूसरे इसमें क्या आएगा? 3 प्लस 6 will be there. Then 4 plus 4 8, perfect. 5 plus 6 11, 5 plus 6 5 प्लस 6 है ना आपका? ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको प्रिंट करवा के देना पड़ेगा। क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ तक? हेलो, यस सर। तो दिस इज द लॉजिक। अभी यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा आ सकता है, ऐसे ऐसे होता है, बट यही आएगा या यही होगा मैं ये नहीं बोलूँगा आप लोगों को। क्लियर गाइज? ओके सर। हमारा यहाँ पे Yes, क्या sir. काम है कि आपको वो सोच तक लेके जाए, ओके। वहाँ से आपको आगे चलना पड़ेगा। अभी आगे कैसे चलना है, जितने हो सके उतने आप प्रोग्राम्स करके देखोगे, लॉजिक लगा के देखोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे, ओके। डेवलपर बनना है मतलब सिंपल चीज़ें करके तो कोई भी कर लेगा। आप ही नहीं है तो दुनिया के सब लोग सिंपल चीज़ें कर लेते हैं, राइट? ठीक है। आपको एक्चुअल एज एन डेवलपर बात करनी है, एज एन प्रोग्रामर काम करना है, तो आपको ये लॉजिक आपको आना चाहिए और सोचना आना चाहिए। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप करियर में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करोगे। आपका करियर काफ़ी अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा, स्मूथ चलेगा। गाइस क्लियर हो? यस सर। और याद रखना है ये चीज़ एक दिन से आती नहीं है, आपको इसको ओके काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके ये आपके अंदर चीज़ आएगा, ओके। हर एक के पास नहीं होता है, हुआ नहीं तो भी चलेगा, बट आपको ट्राई करो, ऑब्वियसली आप एक दिन आराम से सीख पाओगे। क्लियर गाइस? यस सर। ओके फाइन, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, या फिर आज हम यहीं पे रुकते हैं, कंटिन्यू करेंगे टुमारो मॉर्निंग 8 o'clock। है एनीवन, एनी डाउट? सर रिकॉर्डिंग हुई है? अरे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, तो आपको क्या करूँगा, सैटरडे तक मैं भी सेंड करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा क्या हो रहा है, नेट इशू आ रहा है और ये थोड़ा फाइल ज़्यादा बनता है, आधा GB, ओके। तो 800 MB 900 MB का, तो उसको अपलोड करने में टाइम ले रहा है, ठीक है? ओके।
या फाइन, ठीक है। इसके अलावा कोई और डाउट?